Hello everyone, good morning, dear students. First of all, I would like to wish my students a very happy Lodi. I wish may the celebration of Lodi fill your heart with festive spirits and bring you many more joys in your life. Now, as I have told you yesterday, beta, that we are going to start chapter number 13 from your English Alive course book. And the title of our chapter is The Diary of a Space Traveler by Satyajit Roy. Now, who was Satyajit Roy? Satyajit Roy was an Indian film director, writer, illustrator, and music composer. He was born on 2nd May 1921 in Calcutta, Bengal, and died on 23rd April 1992 at the age of 70 on the same place. He was also awarded an honorary degree by Oxford University. Rai was also a master of science fiction writing and authored many short stories and novels for the young children. He created two famous fictional characters in Bengali children's literature, Feluda, a private detective, and Professor Shonku, who was a scientist. Okay, so see the title, beta. The title of our chapter is The Diary of a Space Traveler. And every time I have the same thing to tell you that, beta, whenever you start the chapter, just go through the title always. Whatever is given in the title, we are going to read the same thing in the chapter. So the title is here The Diary of a Space Traveler. It means whatever we are going to read in this chapter, everything is from a diary, right? Okay, so this chapter is about Professor Trilokeshwar Shonku, who was a Bengali scientist, has built a rocket and set off to Mars. His companions were his servant Prahlad, his cat Newton, and a robot. He has built called Bidu Shekhar. So let's read out to find out about their experiences, what they had experienced in their journey towards the Mars planet. Okay. So before moving on towards the reading of the chapter, let's first discuss the hard words from the same. So see the first keyword, it's speculations. Speculations means guesswork. Babu, it's a respectful form of address for a man in several Indian languages. Meteorite, meteorite is a piece of rock, एक पत्थर का टुकड़ा, or other matter that has fallen to the earth's surface from outer space. Next is anxieties, means feelings of nervousness or worry, ebbing away, becoming less strong, subsiding. Venture, a risky or daring project. Gecko, gecko means a small lizard. Numb means unable to feel any emotion due to the shock. In Hindi we can say sun ho jana. Wiped clean. Here the meaning of wiped clean is dread. Pathetically in a way that cause pity. जब आपको किसी पे दया आती है. Clanging, a loud ringing sound like that of metal being hit. जब metals आपस में टकराते हैं तो जो साउंड क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड क्लैंगिंग. डिसमेंटल्ड, पुल्ड अपार्ट मीन्स डिसकंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड सॉरी. bargained for, unexpected and therefore surprising. Extent, range or scope. Next is yanked. Yanked means pulled. Impact, a sudden and powerful effect. Incapacitated, made powerless. Eerie, strange and frightening. Ajeeb, ambrosia, the drink of the Greek gods, often leading to longevity. Fatigue, exhaustion or we can say tiredness. थकावट होना, concern, worry about a situation. Stumbling, tripping or losing balance. Stench, a strong unpleasant smell.
deafening, extremely loud. Abyss, a deep hole in which seems to have no bottom, means immeasurable. Next is myriads, means in great number. Primitive, primitive, that is means something that is very old, like belonging to a very early period in the development of human society. Next is regret, to feel sorry about something one has done or failed to do. So this was all about the keywords. Now let's move on towards the reading of the chapter. This is an excerpt from the story The Spaceman's Diary. Professor Shonku goes to outer space along with his servant Prahlad, his cat Newton, and his robot Buddhishekar, and pens down his experiences in a diary. Read his diary to know about the adventures he had there. So, whatever we are going to read in this chapter, in this story, is a part that has been taken from द स्पेस मैन्स डायरी. ये जो पार्ट हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट इसमें दिया हुआ है. ये पार्ट इस स्टोरी में से लिया गया है. कंप्लीट स्टोरी इसमें है. ओके. और इसमें क्या दिया हुआ है? प्रोफेसर शोंकू गोज़ टू आउटर स्पेस. प्रोफेसर शोंकू जो हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, एक बंगाली साइंटिस्ट हैं. वो स्पेस पे जाते हैं. किस किस को साथ लेके? अपने सर्वेंट प्रहलाद को साथ लेके, उसकी कैट है न्यूटन एंड हिज रोबोट, और उसका एक रोबोट बुद्धिशेखर, जिसको वो साथ लेकर के आउटर स्पेस पे जाते हैं. एंड पेन्स डाउन हिज एक्सपीरियंसेस इन अ डायरी. और वट जो भी उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, वट एवर ही हैड एक्सपीरियंस्ड देयर, एवरीथिंग ही रोट डाउन इन हिज डायरी. वो हर चीज़ को अपनी डायरी में लिखते हैं. रीड इस डायरी टू नो अबाउट द एडवेंचर्स ही हैड देयर. तो उसके लिए हम उनकी, अब इसमें क्या है, डायरी में से ये जो पार्ट लिया गया है उसको पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या क्या एडवेंचर्स, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की, क्या कुछ देखा. इट वॉज फ्रॉम तारक चटर्जी दैट आई गोट प्रोफेसर त्रिलोकेश्वर शोंकूज डायरी. तो दिस लाइन इज सेड बाय सत्यजीत रॉय. जो तारक चटर्जी थे वो सत्यजीत रॉय जो थे उनके फ्रेंड थे. ही वॉज हिज फ्रेंड एंड ही गोट प्रोफेसर त्रिलोकेश्वर शोंकूज डायरी फ्रॉम दिस फ्रेंड. सत्यजीत राय जी को ये डायरी उनके फ्रेंड से मिली थी. प्रोफेसर शोंकू हैड डिसअपियर्ड अबाउट 15 ईयर्स एगो. प्रोफेसर शोंकू जो थे वो आज से 15 साल पहले गायब हो गए थे, डिसअपियर हो गए हैं. सम बिलीव्ड दैट समथिंग हैड गॉन टेरिबली रॉन्ग व्हाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट. कुछ लोगों को ये लगता है कि मतलब कि वो ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ गलत हुआ था. बट अदर सेड दैट ही वॉज स्टिल अलाइव. बट कुछ लोगों का कहना है कि वो अभी भी जिंदा हैं. आई हैड नो आइडिया. मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है. इफ़ एनी ऑफ दिस स्पेकुलेशन वर करेक्ट. मतलब लोग जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है वो जिंदा है, सम आर सेइंग दे आर डेड, ही इज़ डेड, मीन्स ये उनकी स्पेकुलेशंस है, मतलब ये वो गेस कर रहे हैं. तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सच है या नहीं है मुझे कोई आइडिया नहीं है. बट आई डिड नो दैट प्रोफेसर शोंकू वॉज अ साइंटिस्ट. बट मुझे इतना पता है कि प्रोफेसर शोंकू जो थे वो एक साइंटिस्ट थे. द क्वेश्चन वॉज हाउ डिड तारक चटर्जी गेट होल्ड ऑफ इट. क्वेश्चन ये है कि तारक चटर्जी के पास जो ये डायरी थी, उन्होंने इसको अपने तक कैसे रखा. व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब मैंने उनसे पूछा. एक्चुअली डिटेल के अंदर ये स्टोरी द स्पेसमैन्स डायरी में दी हुई होगी. इसमें बिल्कुल शॉर्टकट में इसको बताया गया है. व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब मैंने उनसे पूछा, तारक बाबू स्माइल, तो तारक बाबू ने स्माइल किया. डू यू रिमेंबर दैट केस इन द सुंदरबैंस. तुम्हें सुंदरबैंस में जो केस हुआ था उसके बारे में याद है. विच केस डू यू मीन. दैट मेटेरॉइड, आई आस्क्ड. तो मैंने उससे पूछा किस केस के बारे में तुम बात कर रहे हो. दैट मेटेरॉइड, उस मेटेरॉइड की मैंने पूछा. अबाउट ए ईयर एगो, एक साल पहले, अ बिग मेटेरॉइड हैज़ फॉलन इन द मेथेरिया डिस्ट्रिक्ट इन द सुंदरबैंस. सुंदरबैंस में मेथेरिया डिस्ट्रिक्ट के सुंदरबैंस के मेथेरिया डिस्ट्रिक्ट में एक बार एक बड़ा मेटेरॉइड गिरा था. दैट नोटबुक वॉज लॉइंग एट इट्स सेंटर. तो ये जो नोटबुक थी, ये मतलब ये जो डायरी थी, ये उसके सेंटर में वहाँ पे
पढ़ी थी। दैट सेम नाइट, उसी रात को, आई स्टेड अप टू फिनिश रीडिंग द डायरी, मैंने पूरी डायरी उस रात पढ़ी थी। Okay, so here we are going to start reading whatever was written in Professor Shonku's diary by Professor. Okay, so on 2nd of January, my anxieties regarding the rocket are slowly ebbing away. The closer I am getting to my date of departure, the more enthusiastic I feel. I think that my first attempt failed only because of Prahlad. He had moved the arms of the clock while winding it. In a complex venture like this, every second matters. Prahlad mistake delayed me by nearly 3.5 hours. A half hours. No wonder what the rocket rose and fell again with a loud thud. So, प्रोफेसर शोंकू लिखते हैं कि रॉकेट को लेकर के मेरी जो चिंता थी वो धीरे धीरे कम होती, मतलब बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे डिपार्चर की डेट, मतलब उन्होंने प्लान किया था कि वो मार्स प्लैनेट पे जाएंगे, तो कहते जैसे जैसे वो डेट नज़दीक आ रही थी मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट है वो फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया है? बिकॉज ऑफ प्रहलाद की वजह से फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया? ही हैड मूव द आर्म्स ऑफ द क्लॉक, कि उसने जो क्लॉक की जो आर्म्स थी उनको मूव कर दिया। कब? वाइंडिंग के टाइम पे। इन अ कॉम्प्लेक्स वेंचर लाइक दिस, मतलब हम इतना एक कॉम्प्लिकेटेड सा काम करने जा रहे थे। एवरी सेकेंड मैटर्स, तो यहाँ पे एक एक सेकेंड मैटर करता है। प्रहलाद मिस्टेक डिलेड मी, प्रहलाद की इस मिस्टेक की वजह से हमें डिले हो गया, हमें देरी हो गई है। बाय नियरली 3.5 hours, मतलब 3.5 घंटे हम लेट हो गए उसकी इस मिस्टेक की वजह से। नो वंडर दैट द रॉकेट रोज एंड फेल अगेन विद अ लाउड थर्ड। कहते इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो रॉकेट है वो फेल अगेन, दोबारा गिरेगा विद अ लाउड थर्ड, एक लाउड एक्सप्लोजन के साथ में। ओके, देन 5th of January को वो क्या लिखते हैं? प्रहलाद इज़ अ फूल, प्रहलाद एक मूर्ख है, बट इट मे वेल बी यूजफुल टू हैव हिम विद मी, बट उसको मैं अपने साथ लेके उसका मतलब लाभ उठा सकता हूँ। समटाइम्स स्लो एंड फुलिश पीपल शो मोर करेज देन क्लेवर वंस। कई बार क्या होता है कि स्लो और फुलिश पीपल जो होते हैं वो करेज भी ज़्यादा दिखाते हैं, किनसे? जो ज़्यादा क्लेवर होते हैं उनसे। एज इट टेक्स देम लॉन्गर टू वर्क, क्योंकि उनको किसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लगता है। दैट नीड और रीज़न टू फील स्केयर्ड। Once a gecko had fallen from the ceiling on my bottle of biochronic acid and overturned it. कहते एक बार एक gecko इज़ अ स्मॉल लिजार्ड, मतलब एक छोटी सी छिपकली मेरी सीलिंग से, मतलब छत से मेरी बॉटल जो बायोक्रॉनिक एसिड की जो बॉटल थी उसके ऊपर गिर गई। एंड ओवरटर्न इट, और उसे ओवरटर्न मतलब उसे टर्न कर दिया, मतलब वो नीचे उथल होकर गिर गई। आई हेल्पलेसली वॉच्ड द एसिड स्लोली स्प्रेड टूवर्ड्स अ लिटिल हीप ऑफ पैराडॉक्साइड पाउडर। तो वहाँ पे हीप होता है ढेर, मतलब वहाँ पे पैराडॉक्साइड पाउडर पड़ा था जिसके पास वो धीरे धीरे जो एसिड था वो उसके पास जा रहा था। ऑल माई लिम्ब वेंट नम, और जब मैंने इस चीज़ को देखा, सीन द पिक्चर, कि वो ये लिक्विड जो था, एसिड था, वो गिर गया था और यहाँ पे इसका वो पैराडॉक्साइड पाउडर पड़ा था जिसके पास वो धीरे धीरे जा रहा था। तो ये सब देख के प्रोफेसर, ऑल माई लिम्स होते हैं पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हो गए, लाइक लेग्स एंड हैंड्स, वेंट नम मीन सुन हो जाना, मेरे जो बॉडी पार्ट्स थे वो सुन हो गए। प्रहलाद एंटर्ड द रूम, प्रहलाद ने रूम में एंटर किया। एंड कूली वाइप्ड इट ऑफ विद अ टॉवल, और उसे बहुत ही केयरफुली टॉवल से वाइप किया। हैड ही नॉट डन सो इन जस्ट 5 seconds माई एंटायर लेबोरेटरी, 5 सेकेंड के अंदर अंदर उसने पूरा का पूरा साफ कर दिया। प्रहलाद माई सेल्फ एंड इवन विदुशेखर वुड हैव बिन वाइप्ड क्लीन, और उसे भी क्लीन कर दिया। सो आई थिंक आई विल टेक प्रहलाद विद मी, तो मैंने सोचा कि मैं प्रहलाद को अपने साथ लेके जाऊँ।